Hello students, I am Dr. Akhilen Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Psychology, DAV PG College, Varanasi. Today I am going to discuss about the anatomy and function of cranial nerve. Cranial nerve is a very important uh, aspect of peripheral nervous system, and here is the structure and function of cranial nerve. So cranial nerve comes under the classification of peripheral nervous system. Peripheral nervous system has two divisions, somatic nervous system and autonomic nervous system. And if we see the further division of autonomic nervous system, that is afferent nerve and efferent nerve. In efferent division, there is sympathetic and parasympathetic division. And in if we see the somatic nervous system, there is also division of afferent and efferent. So cranial nerve is comes under the somatic nervous system mainly, cranial nerve and spinal nerve. But some function of the cranial and spinal nerves also control the autonomic functions. So what is cranial nerve? The cranial nerves, the peripheral system has 12 pair of cranial nerves that control much of the motor and sensory function of the head and neck. The cranial nerves are a set of 12 pair nerves that arises directly from the brain. Cranial nerves relay information between the brain and part of the body, primarily to and from a region of the head and neck. And spinal nerves are different from the cranial nerves, and similarly spinal nerves communicate with the brain through spinal cord. So cranial nerve mainly controls the function of our head and neck. The cranial nerves are considered a component of peripheral nervous system. However, on a structural level, the olfactory and optic nerve are more accurately considered as a part of central nervous system. Each cranial nerve is paired as the present on both sides. The name of the cranial nerves related to their function, and they are also numerically identified in Roman numbers or numerals from 1 to 12. If you see the origin and location of cranial nerves, the cranial nerves are numbered by their location on the brainstem, superior to inferior, then medial to lateral, and the order of their exit from the cranium, anterior to posterior. Olfactory nerve, cranial nerve number 1, and optic nerve, which is cranial nerve number 2, originated from the cerebrum. The olfactory nerve is the shortest of the 12 cranial nerves. So underline this, the olfactory nerve is the shortest cranial nerve of all 12. Cranial nerves 3rd to 12 arises from the brainstem. I have already discussed about the brainstem. Brainstem is a structure which included the major portion of hindbrain and midbrain, which excluded the cerebellum. So medulla, pons, and some structures of midbrain formulate this structure that is known as brainstem, and which play a major role in arousal. So cranial nerve number 3rd to 12 arises from brainstem, and they can arise from the specific part of the brainstem like midbrain, pons, and medulla, or from the junction between two parts. So
मिड ब्रेन पोंटी जंक्शन से जो है ये हमारा ऑक्यूलोमीटर थर्ड, ये जो है मिड ब्रेन पोंटी जो जंक्शन है उससे निकलता है। और मिड ब्रेन द ट्रॉक्लियर नर्व जिसको हम कहते हैं 4 नंबर come from the posterior side of the midbrain. It has the longest intracranial length of all the cranial nerve. फिफ्थ, पॉन्स जो है पॉन्स से ये ट्राइजेमिनल फिफ्थ निकलता है। एंड पोंटी मेडुला जंक्शन से एब्ड्यूसेंस फेसियल एंड वेस्टिबुलो कॉक्लियर 6 to 8 ये क्रेनियल नर्व जो पोंटी मेडुला जंक्शन से निकलते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा से पोस्टीरियर टू द ओलाई, इससे ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस एंड एसेसरी यानी कि 9, 10 और 11 क्रेनियल नर्व, और एंटीरियर टू द ओलाई जिससे हम लोग हाइपोग्लोसल यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 12 ओरिजिनेट होती है। This is the structure of cranial nerve and their location in brain. You can see here olfactory nerve number 1, number 2 optic nerve, number 3 oculomotor, number 4 trochlear, number 5 trigeminal, number 6 abducens, 7 facial, 8 vestibulocochlear, 9 glossopharyngeal and 10 vagus, 11 hypoglossopharyngeal line, 10 is vagus, 11 is accessory and 12 is hypoglossal. You can see the same thing in this picture from top to bottom in their sequence: olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibular and vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossal. So hypoglossal is the 12th and olfactory is the first. So if we see the function of cranial nerve, the olfactory nerve number 1, cranial nerve number 1 is known as olfactory nerve. This is the instrumental for the sense of smell. It is one of the few nerves that are capable of regeneration. तो olfactory nerve में अगर किसी प्रकार का कोई डैमेज होता है तो ये रीजनरेट भी हो सकती है। दूसरा ऑप्टिक नर्व, दिस नर्व कैरी विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द रेटिना ऑफ द आई टू द ब्रेन। तो ये रेटिना से ब्रेन के बीच इंफॉर्मेशन को कैरी करती है ऑप्टिक नर्व। तीसरा है ऑक्यूलोमोटर नर्व, दिस कंट्रोल मोस्ट ऑफ द आई मूवमेंट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल एंड मेंटेन एंड ओपन आईलिड, आंख को खुलना, आईलिड का खुलना और जो आंख की पुतली है उनका सिकुड़ना, जैसे ज्यादा लाइट पड़ने पर, इन सबको ये ऑक्यूलोमोटर कंट्रोल करती है। क्रेनियल नंबर 4 जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉक्लियर, इसका जो फंक्शन है मोटर नर्व दैट इनर्वेट द सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ द आई विच कंट्रोल रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट तो ये आप देख सकते हैं जैसे कैसे रोटेट करना है, जैसे कि पूरा उसको राउंड राउंड करके आंख को ऐसे घुमाते हैं, उसको कहते हैं ऊपर से नीचे तक, इसको रोटेशनल कहते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व फिफ्थ है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन एंड मोटर फंक्शन ऑफ द फेस एंड माउथ। सिक्स है एब्ड्यूसेंस नर्व एंड दिस नर्व function as a motor nerve that innervate the lateral rectus muscle of the eye, lateral rectus muscle of the eye which control lateral movement. So lateral movement you can see in the this diagram. Lateral movements means moving your eye ball here and there.
नेक्स्ट है हमारा जो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, and this nerve receives sensory information from the tonsil, the pharynx and middle ear and rest of the tongue. Thus glossopharyngeal nerve is responsible for controlling muscle in the oral cavity and upper throat, as well as a part of sense of taste and production of saliva. ये महत्वपूर्ण काम ये ग्लोसोफेरेंजियल करता है। अगला इसमें एर्थ है facial nerve. This control the muscle of facial expression and function of the conveyance of taste sensation from the anterior two-thirds of the tongue and oral cavity. It is the part of sense of taste and production of saliva also. एट्थ है the vestibulocochlear nerve. This is responsible for transmitting sound and equilibrium, means balance information from inner ear to the brain. टेंथ हमारा जो है वह वेगस नर्व. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी टास्क इंक्लूडिंग हार्ट रेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल peristalsis, sweating and muscle movement in the mouth, including speech and keeping the larynx open for breathing. In some, the vagus nerve is responsible for contributing to the homeostasis, control of the organs of thoracic and upper abdominal cavity. तो वेगस नर्व जो है ये फेस और नेक के अलावा बाकी जो है बॉडी पार्ट्स को जैसे स्टमक रीजन, चेस्ट रीजन, इनमें जो है ये मूव करती है, वॉन्डर करती है, इसीलिए इसका नाम भी इसी वेगस है। हमारा 11वां जो है स्पाइनल एक्सेसरी है. दिस नर्व कंट्रोल स्पेसिफिक मसल ऑफ द शोल्डर एंड नेक along with cervical spinal nerve. And 12th है hypoglossal nerve. This control the tongue movement of speech, food manipulation and swallowing. तो ये जो है हाइपोग्लोसल जो है खाना निगलने और टंग मूवमेंट इन सबको कंट्रोल करता है. एनाटॉमिकल फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व. क्रेनियल नर्व को वास्तव में पेरिफेरल के अंतर्गत रखा जाता है और पेरिफेरल में ज़्यादातर ये सोमैटिक डिवीजन में है, लेकिन कुछ इसके ऑटोनॉमिक फंक्शन भी हैं. जैसे 3 of the cranial nerve also contain autonomic fibers and a 4th is almost purely a component of autonomic system. अब 3 कौन है ये इसमें? oculomotor, facial and glossopharyngeal nerve contain fiber that contact autonomic ganglia, और oculomotor fiber initiate pupillary construction, whereas the facial and glossopharyngeal fibers both initiate salivation. से आँख की पुतली का सिकुड़ना ये बहुत हद तक जो है लाइट के ऊपर डिपेंड करता है. उसी तरह सलाइवेशन भी जो है हमारे कंट्रोल में बहुत ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, आप चाह के भी कई बार कुछ ऐसा खाना पीना देखते हैं तो आपका सलाइवेशन शुरू हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते. उसी तरह द वेगस नर्व प्राइमरली टारगेट ऑटोनॉमिक गैंग्लिया इन द थोरैसिक एंड अपर एब्डोमिनल कैविटी. मोडेलिटी ऑफ द क्रेनियल नर्व, यानी क्रेनियल नर्व किस प्रकार किस तरह की होती है, सेंसरी होगी कि मोटर होगी, उसको हम लोग मोडेलिटी कहते हैं. तो क्रेनियल नर्व कैन बी क्लासिफाइड एज ए सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मीनिंग दैट द एक्सॉन इन these nerves originate out of the sensory ganglia external to the cranium or motor nuclei within the brainstem. The sensory axon enter in the brain to the synapse in the nucleus, and motor axon connect to skeletal muscle of the head and neck. मोटर एक्सॉन बाहर की तरफ जाता है और सेंसरी एक्सॉन अंदर की तरफ. तो 3 of the nerve are solely composed of sensory fiber,
5 आर स्ट्रिक्टली मोटर एंड 4 आर मिक्स्ड नर्व। अभी कौन से सेंसरी कौन से मोटर हैं वो देखिए। द फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ नर्व आर प्योरली सेंसरी, द ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये जो है सेंसरी है प्योरली। 3 आई मूवमेंट नर्व जिसमें ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्यूसेंस हैं, और उसके साथ ही साथ जो है स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल, ये सारे जो है मोटर फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। मोटर फंक्शन की विशेषता इसकी होती है। इसके अलावा 4 और बचते हैं जिसमें ट्राइजेमिनल, फेसियल, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस, ये जो है मोटर और सेंसरी दोनों प्रकार के काम करते हैं। The nerve that convey both are often related to each other. Both मतलब सेंसरी और मोटर दोनों काम जो करते हैं। Trigeminal and facial nerve both concern the face. One concern the sensation and other concern the muscle movement. इसी तरह से the facial and glossopharyngeal nerve are both responsible for the conveying gustration or taste sensation as well the controlling salivary gland. The vagus nerve is involved in visceral response to the taste, namely the gag reflex. It is not an exhaustive list of what these combinations nerve do, but there is a thread of relation between them. So there are also some cranial nerve related disorders like cranial nerve disorder such as trigeminal neuralgia and hemifacial spasm affect the connection between cranial nerve center within the brain. There are 12 pair of cranial nerves that lead directly from the brain to the various part of the head and neck and trunk. Some of the cranial nerves are involved in the senses such as seeing, hearing and taste. Other control muscle in the face or regulate the gland. So if you see the symptoms of cranial nerve disorders, so cranial nerve disorder can cause a variety of symptoms which may include intermittent attack of excruciating facial pain, vertigo, dizziness जिसको कहते हैं चक्कर आना, हियरिंग लॉस, वीकनेस, पैरालिसिस आप सब जानते हैं, और फेशियल ट्विच, तो फेस में जो है ट्विस्ट इस तरह का दिखता है, जैसे घुमाव दिखता है फेसेस में, ये सब सारी चीजें आपको इन डिसऑर्डर्स में देखने को मिलेंगी। इफ देयर आर सेवरल थिंग्स which can be included in cranial nerve disorders, but that is not in the scope of our study. अब हम बात करते हैं जो है कैसे ये cranial nerves इतने इम्पोर्टेंट हैं और इनको हम याद कैसे करेंगे। कि 12 cranial nerve हैं, तो आपको याद करने के लिए मैं एक जो है स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसको हम लोग साइकोलॉजी में निमोनिक बोलते हैं। तो उसको फ्रेजेस के थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे पहला है, जैसे आपको एक स्टैंडर्ड बुक्स में ये सब चीज़ें कई मिल जाती हैं, कि एक फ्रेज जो वेस्टर्न बुक में मैंने देखा था वो लिखा हुआ था, ऑन ओल्ड ओलिम्पस टावरिंग टॉप ए फेन एंड जर्मन व्यू सम होप्स। क्योंकि ये बड़ा कठिन टाइप का है, ये हमें याद नहीं होगा, इसलिए इसका दूसरा फ्रेज देखिए, ऑन ओकेजन ऑफ ट्रीट द एरोगेंट फेसेस आर गिविंग वेरी स्पाइकी हैप्पीनेस। ने आपने किसी को ट्रीट दिया हुआ है और उस ट्रीट के ओकेजन पर कुछ एरोगेंट लोग हैं जो इस तरह के स्पाइकी हैप्पीनेस, कांटेदार खुशी प्रदर्शित कर रहे हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो सारे का जो पहला लेटर है वही इसमें खास तौर से यूज कर सकते हैं। अगर आप नर्व्स का नाम याद हो, जैसे ऑन ओकेजन ऑफ ट्रीट, तो ओ आप देखेंगे ऑल्फैक्टरी नर्व हो सकता है, पहला होगा। दूसरी तरफ फिर ओ है ऑन ओकेजन ऑफ, मतलब 3 ओ है पहले, तो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑक्यूलोमोटर, ये 3 होंगे।
इसके बाद ट्रीट द एरोगेंट, टी टी ए। तो टी से जो चौथा है वो ट्रॉक्लियर आता है, पांचवा ट्राइजेमिनल है, और छठा आपका ए से जो आता है एब्ड्यूसेंस उसको कहते हैं। उसी तरह से आप देखें फेसेस आर गिविंग एफ, एफ से फेसियल है, आप उसको देख सकते हैं। ए जो है सॉरी एफ ए जी, तो फेसियल। और इसके बाद आप इसको ए से एसेसरी है, फेसेस आर गिविंग, जी से जो है ग्लासोफेरेंजियल, वी, वी से जो होता है, वी से हमारा है वेगस नर्व, यस स्पाइकी जिसको हम कह रहे हैं, एस से जो है एच से हैप्पीनेस से हाइपोग्लोसल है। और इसी तरह से एक एक नाम को हम लोग ये कर सकते हैं। या लास्ट में एक हमने सबके पहले लेटर को लेकर जो है बनाया हुआ है, जैसे ओटा, ओ ओ ओ टी टी ए, वी एफ एफ वी जी, वाह, वी ए एच। तो उस हिसाब से ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल एंड एब्ड्यूसेंस, एफ से फेसियल, वी से वेस्टिबुलोकॉक्लियर और जी से ग्लासोफेरेंजियल है। उसी तरह वी से वेगस है, ए से एसेसरी है और एच से हाइपोग्लोसल है। तो इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो है, अगर आप फंक्शन को देखें तो कौन सेंसरी है कौन मोटर है, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हमारे 12 नर्व्स हैं, उसी में जो ऊपर का आप देख रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड बुक में देखा था मैंने कहीं, तो सेंटेंस है कि सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर से ब्रेन ब्यूटी मैटर मोर। तो आप इसको याद कर सकते हैं तो उसको कर लीजिए, नहीं तो नीचे का जो दिया हुआ है जैसे सम से मनी मैटर बट माय ब्रदर से बिग बुक मैटर मोर, तो इसके जो पहले लेटर्स हैं वो प्रदर्शित करते हैं कि वो नर्व क्या है, क्रैनियल नर्व का जो कौन सा फंक्शन है। जैसे सम से माने कि जो पहला और दूसरा है, यानी कि जो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक है ये दोनों सेंसरी है। तीसरा जो है जो मनी मैटर, तो एम से मोटर रिस्पांस होता है। अब तीसरा और चौथा अगर आप देखेंगे तो ऑक्लोमेटर और ट्रैक्लियर जो है ये हमारा दोनों का दोनों एक तरह से मोटर रिस्पांस होता है। बट बी लगा है, बी फॉर बोथ। तो इसके बाद जो है पांचवा जो होगा वो ट्राइजेमिनल, वो दोनों तरह का है, सेंसरी भी है और मोटर भी है। माई ब्रदर, तो जो छठा होगा एम मोटर, यानी कि एब्ड्यूसेंस मोटर होगा। ब्रदर बी है, तो बी का मतलब बोथ, यानी कि जो फेसियल होगा वो बोथ होगा। उसी तरह से एस सेंसरी होगा अगला जो है, जैसे वेस्टिबुलोकॉक्लियर है। फेस बिग बुक मैटर मोर, तो बी, बी डबल बी है मतलब बिग बुक, यानी कि आगे का दोनों बोथ होगा, यानी कि ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस ये दोनों ही जो है एक तरह से दोनों तरह के फंक्शन करेंगे, सेंसरी और मोटर भी। और मैटर मोड यानी कि लास्ट के जो दो हैं वो जैसे एसेसिंग, एसेसरी और हाइपोग्लोसल, तो ये दोनों ही जो है एक तरह से मोटर फंक्शन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 2 S3 इसमें तीन प्योर एयर्स है, और उसके बाद जो है मोटर में M1 2 3 4 5 मोटर है। तो 3 सेंसरी 4 मोटर, 4 3 सॉरी 5 मोटर, 5 3 8, और बाकी जो है 4, यानी कि बट, ब्रदर, बुक, ठीक है। तो ये सब सारी जो चीजें हैं वो आपको बोथ में आती हैं, जो बी से शुरू होते हैं, बट, ब्रदर एंड बुक, ठीक है। तो इस तरह से 12 को हम जो है सेंसरी मोटर के रूप में
कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें काउंट कर सकते हैं, जैसे सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक मैटर मोर। ये 12 हमारे सेंसरी मोटर और दोनों कौन से काम करेंगे, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्रैनियल नर्व के बारे में। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।